Hello students, welcome to Cosmic Education Group. Today we are here to discuss chapter 3rd matrices of CBSE class 12th NCERT. First of all, let's discuss what do we know by matrix and what is matrices. मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और फंक्शन। किसी नंबर को, कोई डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। एंड मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। लाइक ये क्या है? मैट्रिक्स है, इसका नाम दे दिया मैंने ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 4 -2 क्या है? अरेंजमेंट है। ये रिप्रेजेंट कर रखे नंबर्स, ठीक है, क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, now components of matrix। एक तो होता है इसमें रो, एक होता है कॉलम, और एलिमेंट तो होती हैं ये सारे जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये नंबर हो या फंक्शन हो। जैसे मान लो मैंने कोई बी मैट्रिक्स लिख दिया, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और माइनस साइन थीटा। सिंपल, ये क्या है? फंक्शन है, साइन कोस टेन। और ये क्या है? सिंपल नंबर्स। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ होती है और कुछ विड्थ होती है। जैसे इसकी ये लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया होगा। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब आती बात रो की। रो क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स है सपोज, इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। vertical elements are called column. Suppose I write a new matrix here, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now these 1 2 3 ये एक हॉरिजॉन्टल रो में, तो इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? रो इज कॉल्ड रो 1। सेकेंड रो इसको बोलते हैं रो 2 और इसको रो 3। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल है, जो ऐसे ये प्रेजेंट है, ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं कॉलम 1, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलम 2 और इसको बोलते हैं कॉलम 3। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। Matrix is done. Definition: a matrix is an ordered rectangular array of number और function। ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, किसको? नंबर्स हो या फंक्शंस हो। Now next is row we have done. All the horizontal elements are called rows, all the vertical elements are called column. Now we have to deal with the order of a matrix. Order of the matrix means how many rows and how many columns are present in the matrix. Suppose I have a matrix of A as 1 2 3 4 5 6 7 8, and I have another matrix B 1 2 5 6 8 9, and another matrix C as 1 2 2 1. Now by order we mean number of rows into number of
column. Generally we represent number of rows by m and we represent number of columns by n. So order will be m by n. This is not multiplication, normal multiplication, it's m by n. Okay, now let's come to these examples. How many rows are there in this matrix A? 1 and 2. So order number of rows will be 2. Now look for the number of columns. 1 2 3 4. So the order will be 2 by 4. Now in example B, matrix B, how many rows are there? 1 2 3. So order will be 3 by. Now look for the number of columns. 1 2. So its order will be 3 by 2. Now for matrix C, there are 2 rows and 2 columns. So its order will be 2 by 2. Now from this we can conclude another topic, that is number of elements in matrix. If we have to find the number of elements in matrix, means how many element does it have, then we have formula. We can find it out by number of rows and multiplied. Here it means multiplied by number of columns. Here in writing order, this means by. This does not mean in normal multiplication. But if we have to find the number of elements in matrix, then we have to do normal multiplication. For this, if I have to find the number of elements in A, there will be 2 by 4, means 2 cross 4 कितना 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. If you have to find the number of element in this, there will be 3 into 2 6. In this 2 into 2 4. Now next topic is representation of matrix. Representation, form or notation of matrix. Suppose I have a matrix A of order m cross n, means in this A matrix there are m number of rows and n number of columns. So how would I write this? I would write it as A equal to, now just check, this will be the first row, so its element will be first row and its element will be second row, likewise third row, and up to how many rows does I have? M. So it will be A M. Now this element lies in the first row and this will be the first column, so this will be A11, means first row first column, common element present in the first row first column. This will be the second column, so this element will be 1 2, likewise 1 3 up to A1. Row will remain first, ये क्या रहेगी? पहली रो रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. नाउ आई हैव n number of columns, so this element will be 1n. Likewise, row second, column first, row second, column second, row second, column third, up to A to n. Clear? Likewise, first column AM2 up to AMN. So these are called the elements or entries, all these. So matrix A can be represented as Aij, and where I is number of, I represents row and J represents column. Suppose I have to find A32.
If I compare A32 with Aij, then I might find I equal to 3 and j equal to 2. So in third row and I have to find second column. So that will be A31, A32. This will be the A32. Clear? Now let's proceed further. Okay, now let me do an example. If a matrix has 8 elements, what are the possible orders? If an matrix has 8 elements, then what are possible order it can have? क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? देखो, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. अब ऐसा तो नहीं भाई मेरे पास 8 एलिमेंट है तो एक 1.5 रो होगी, आधी रो होगी, 2.25 कॉलम होंगे. सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल ऑलवेज बिलोंग टू नेचुरल नंबर. या तो 1 रो होगी या 2 या 3 या 4 या 5. So order equal to number of rows into number of column. अब number of elements are m into n. If I have 8 elements, then what are the possible values m and n can take? It can only take 1 into 8 or 8 into 1, 2 into 4 or and. So these are the possible orders of the element having 8 elements matrix can have. Now 2 into 4 and 4 into 2. If we do normal multiplication, normal multiply में दोनों का आंसर कितना आएगा? 8. बट अगर ऑर्डर की बात करें तो 2/4 और 4/2 कंप्लीटली अलग है. कैसे? देखो 2/4 में क्या है? ये बताता है नंबर ऑफ रोज. ये है 2/4. देखो इसमें 2 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स है. नाउ 4/2 1 2 3 4 5 6 7 8. This matrix has order of 4/2 and this matrix has order of 2/4. Okay, now let's proceed further. Now how to construct a matrix? Construct a 3/3 matrix whose elements are given by Aij. Now we have to construct a 3/3 matrix whose elements are given by this relation. This is the generalized form. ये क्या है? generalized form given है. Aij equal to half I minus 3j modulus. ठीक है. अब इसमें I क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज. और j क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम. अगर 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9. ये मैट्रिक्स लिखो A11, A12, A13. ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. अब Aij में रिलेशन गिवन है हाफ मॉडुलस 1 माइनस 3j. अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए A11, तो I की वैल्यू क्या रखूंगा इसमें? 1 और j की क्या रखूंगा? 1. तो A11 विल बी हाफ मॉडुलस 1 माइनस 3 दैट कम्स आउट टू बी 1. अब मेरे को A12 चाहिए तो उसमें I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, ये आ गया 5/2. अब मेरे को चाहिए A13, तो हाफ 1 माइनस 3/3, सॉरी 3/3 मल्टीप्लाई 3, तो 1 माइनस 9 कम्स आउट टू बी -8. मॉडुलस विल मेक इट पॉजिटिव 8, सो इट विल कम आउट टू बी 4. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4. सिमिलरली इन सब की वैल्यू निकालो, इन सब की वैल्यू निकालो बाय पुटिंग I एंड j कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज विच आर आस्क्ड एंड विच आर गिवन. ठीक है. अब 3/3 का इसकी सिंपल वैल्यू रखनी है. जैसे ये 1 आया 1, 5/2 4, और ये अपने
आपसे फाइंड आउट करके इसकी जो भी वैल्यू आए ये लिख देना, ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3/3 का। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3। क्लियर है? नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। First type will be row matrix. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ रो हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रो, ओनली वन रो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने भी कॉलम हो, बस रो कितने होने चाहिए? एक। जैसे ये देखो, कॉलम इसमें दो हैं, ये वर्टिकल होता है ना, ये कॉलम होता है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये रोज होती है। और 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगी? 1। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे 1 2 5 6 7 8 9, इसमें रोज पे कोई कंडीशन नहीं है, ये रो है 1 2 3 4 5, इसमें कितनी रोज हैं? 5। बस कॉलम कितना है? एक। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे देखो, इसमें कितने रो हैं? 1, कॉलम कितने? 2, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे इसका ऑर्डर लिख लो ना, 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो गया 1/4, इसका हो गया 2/1, और इसका हो गया 5/1। सो जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स in which number of rows equals to number of column, like 2/2, 3/3. If I write A equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 1, its order is 3/3. तो जब रोज और कॉलम इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, 4 हो गए। फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके कितने डायगोनल होते हैं? 2। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 5 6 7 2 -4 -8, ठीक है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये या फिर ये? भाई जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, इसके अंदर भी तो 2 डायगोनल बन सकते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? जिसमें i = j। मतलब क्या है? ith और jth क्या होना चाहिए? सेम। जैसे ये कौन सा एलिमेंट है? a11। ये कौन सा एलिमेंट है? a13। तो ये जो 1 3 है ना, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट वो होगा जिसमें रोथ और कॉलम नंबर सेम हो। जैसे ये a22 या a33, only these will be the diagonal elements.
अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, जैसे ए 1 0 0 0 2 3 सॉरी 0 0 0 3, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? इसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या है? जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, एक है स्केलर और एक आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसमें एक स्केलर और एक आइडेंटिटी। फिफ्थ सिक्स्थ स्केलर मैट्रिक्स एंड सेवेंथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? डायगोनल को छोड़ के सारे क्या होने चाहिए? जीरो। और जो स्केलर है इसमें क्या है? कंडीशन ये कि ये तो सारे जीरो होने चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम एंड कंडीशन वही है, नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए? जीरो। जैसे ए मैट्रिक्स लिख दूं मैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और मैं कोई बी मैट्रिक्स लिख दूं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, या कोई सी मैट्रिक्स लिख लो 7 0 0 7। ये सब क्या है? स्केलर। और ये क्या है? डायगोनल। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे डायगोनल में क्या है? डायगोनल वाले जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। इसमें क्या है? डायगोनल नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल वाले सेम। आइडेंटिटी में क्या है? नॉन डायगोनल तो होने चाहिए जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो होना चाहिए 1, ओनली 1। देखो डायगोनल एलिमेंट में नॉन डायगोनल होने चाहिए जीरो, स्केलर में नॉन डायगोनल जीरो, बट जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए 3 5 7 जो भी। आइडेंटिटी में इस सेम की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1। आइडेंटिटी पता है ना सभी को क्या होती है? 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ लास्ट इज जीरो मैट्रिक्स। लास्ट क्या है? 7th 8th जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑल एलिमेंट्स। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 0 0 0 0, इट्स ए, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जनरली इसको हम थोड़ा डार्क ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आपको डार्क ओ दिखेगा इसका मतलब क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट इज इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स, सॉरी इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। Okay, now next topic is equality of the matrices. Just remember one thing, for comparison equality of matrix, their order should be same. Order should be same, and corresponding, if corresponding elements are equal, then the matrix are said to be equal. Suppose I write A as a matrix 1 2 3 4 and B as another matrix 1 2 3 4, then both these matrix are equal. Now अगर मैं आपको ये बोलूं कि A मैट्रिक्स ये है x y z 7 और B मैट्रिक्स है 3 1 5 k, और इफ अगर A इज इक्वल्स टू B है, अगर आपको A और B इक्वल दे रखा है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। तो ऐसे x की वैल्यू कितनी आई? 3, और y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 5 और k की वैल्यू क्या आएगी? 7। सो आया समझ में? a इक्वल टू b, अगर मैट्रिक्स इक्वल है, पहली बात तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नाउ
introduction part of 3.1 is over. Now we are to move forward to the exercise 3.1. First question of exercise 3.1. In the matrix A कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70. Write the order of the matrix. First you have to write order. Order पता है कैसे लिखते हैं? Number of rows into number of column. Calculate 1, 2, 3. So number of rows are 3. Number of column 1, 2, 3, 4. So its order will be 3/4. Second part, the number of elements. Number of elements will be 3 into 4 कितना? 12. Third part, write down the element A13, A21, A33, A24, A23 और एक और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं A59. अब देखो A13 AIJ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोरस्पॉन्डिंग रो, और ये रिप्रेजेंट करता है कोरस्पॉन्डिंग कॉलम. अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कॉमन एलिमेंट देख लो. ये रही फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम ये रहा, कॉमन एलिमेंट ये आया 19. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 19. अब A21 रो 2 कॉलम 1, तो इसके एलिमेंट कितना हो गया? 35. जैसे A33 रो थर्ड कॉलम थर्ड -5. A24 रो सेकंड कॉलम फोर्थ, तो आंसर कितना आया? 12. A23 रो सेकंड कॉलम थर्ड, तो आंसर कितना आया? 5/2. अब A59 रो फिफ्थ कॉलम 9th. अब इसमें रो फिफ्थ है, तो इसका क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो चीज है ही नहीं उसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर मेरे पास हो सकता है? देखो 1/24, 2/12, 3/8, 4/6. 5 से मल्टीप्लाई दोनों नंबर होने चाहिए. मान लो 24 आ ही नहीं सकता, 5 नॉट फैक्टर नहीं है 24 का. 6, फिर 8 इंटू 3, फिर 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1. ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं जो इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो? 24. इसी में सेकंड पार्ट में है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. 13 एलिमेंट के दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1 इंटू 13 और 13/1. ये ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके 13 के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, यू कैन डू योर सेल्फ. फोर्थ, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 4th. Construct a 2/2 matrix whose elements are given as Aij equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन में 2. कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का मैट्रिक्स. तो 2/2 का मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट होंगे? A11, A12, एक रो, 2 रो 2 कॉलम.
अब A11 निकालना है, तो इसमें I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2। अब A12 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 9/2। A21 I2 + 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2। और A22 तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा 8। 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना आ गया 8। तो ये एलिमेंट। इसके बाकी दोनों पार्ट खुद से करना। नाउ 5th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। उसमें भी सेम है, 3/4, 4/3 कितने का भी कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन गिवन है, उसमें x, y, z की वैल्यूज निकालनी है। इक्वेशंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 4 3x 5 इक्वल्स टू y z 1 5। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसके अंदर x y z जो भी है वो वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई y, z की वैल्यू कितनी आएगी 3, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 5 की जगह 5 आई, तो x y z की वैल्यू ऐसे निकलती है। इसमें देखते हैं एक थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें x + y + z, x + z, y + z, और ये 9 5 7। अब कंपेयर करने के लिए देखो ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर कितना है, ये एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 तो रो हैं और एक ही कॉलम है। सेम यहां पे 3/1। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करो, x + y + z कितना आ गया 9, और x + z कितना 5, और y + z 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब x + z 5 है, इसमें रख दो, तो y कितना आ जाएगा 4। भाई देखो ना, x + y + z = 9, और x + z तो y + 5 = 9, और y कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 4। अब y + z 7, तो इसमें 7 रखोगे तो x डायरेक्ट कितना आएगा 2, और x y 4 x 2, 2 + 4 6, 6 + z = 9, तो z comes out to be 3। तो ये वैल्यू होगी इसकी x y z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, if a equal to aij and order given है m/n is a square matrix if। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा भाई, स्क्वायर तभी होता है जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो। तो इसका ऑर्डर क्या है m/n, तो m = n हो गया, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, m = n। 9th में वही सेम इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। The number of all possible matrices of the order 3/3. The number of all possible matrices of
order 3 by 3 with each entry as 0 और 1। देखो हमें एक 3 by 3 का मैट्रिक्स चाहिए, तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं कि इसके अंदर देखो ये 3 3 6 और 3। अब कह रहा है कि विद ईच एंट्री एज 0 और 1, तो यहां पे दो नंबर हो सकते हैं, या तो 0 और 1। सेम यहां पे सेम यहां सब में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। अब देखो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, ऐसे लिखते हैं दोबारा, मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया था ना हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जैसे मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, तो इनको कंबाइन, इनको पहनने के मेरे पास कितने तरीके हैं। देखो मेरे पास शर्ट 1 है, शर्ट 2 है, और पैंट 1 है, पैंट 2 और पैंट 3। अब देखो मैं इस शर्ट को इनके साथ पहन सकता हूं, तो S1 P1, S1 P2, S1 P3। सेम फॉर S2, S2 P1, S2 P2, S2 P3। तो टोटल कितने तरीके हो गए। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2 into 3 डायरेक्ट। तो यहां पे फिल करने के तरीके कितने हैं मेरे पास, एंट्री मेरे को 0 या 1 चाहिए, तो इसमें कितने तरीके हैं, 2। इसको भी फिल करने के कितने तरीके हैं, 2। तो सबको टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तो 2 × 2 × 2 कितने प्लेसेस हैं, 9, तो 2 to the power 9, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन ही आ जाए 2 × 3 और यहाँ पे 0 1 और 5, अब कैसे करेंगे। देखो 2/3 का रोज कितनी, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, 2 रो होगी 3 कॉलम। अब इसमें एंट्री चाहिए 0 1 और 5, तो इसमें कितने पॉसिबल वे हैं, 3, यहां पे भी 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 to the power 6। ये क्या होंगे टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 0 1 और 5। नाउ दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 3.1। ओके, अब नेक्स्ट